Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today's our 24th lecture. In the previous lecture, we see about the sequential logic devices. We started with the SR latch. Then we came onto the gated SR latch. We see how gated enable input is attached with a gated SR latch to control its operation. After that, we see a D latch, also known as a transparent latch. We see it has a characteristic of holding a data in its memory. Then we have discussed flip-flops. Latches are level triggered, but flip-flops are edge triggered devices. Latches acts on the level signal level, whereas the flip-flop works on the clock's transition, clock's edge, whenever a transition occurs from 0 to 1 or 1 to 0. If a transition occurs from 0 to 1 and flip-flops trigger, it is known as positive edge triggered, and if it triggers when the clock transition occurs from 1 to 0, the flip-flop is known as negative edge triggered flip-flop. We have several types of flip-flop. We see the SR and D flip-flops that has they have function table almost similar to the SR and D latch. Today we are going to see another flip-flop known as edge triggered JK flip-flop. JK flip-flop is used in many devices. It is widely used. Its operation is similar to the SR flip-flop, except that the JK flip-flop doesn't have an invalid state. Instead, the invalid state, it toggles its states. You can see the floor logic diagram of JK flip-flop made from NAND gates. We see in the SR latch, whenever 1 1 occur on S and R, we have an invalid state in the unstable state, which results in Q and Q bar equals to 1. So in SR latch we have a limitation that we didn't apply S and R equals to 1 at the same time. However, in JK flip-flop, the invalid state is eliminated. Whenever J and K is equal to 1, the output toggles. If Q is equal to 0, it becomes 1 and Q bar becomes 0, and vice versa. Here is the fourth set of inputs that we can apply on JK flip-flop and the effect on the output which occur when these inputs are applied. When J is equal to 0 and K is equal to 0, the previous state is maintained. There is no change in the output. When J is equal to 0 and K is equal to 1, this gives us Q is equal to 0 and Q bar equals to 1. When J is equal to 1, K is equal to 0, it results Q is equal to 1 and Q bar equals to 0, and whenever J is equal to 1, K is equal to 1, the output state is toggled from the previous state. Here we have the function table of both positive edge triggered and negative edge triggered flip-flop. And here are the symbolic logic symbols of edge triggered flip-flop. There is another famous flip-flop known as T flip-flop. Whenever T is equal to 1, the output is complemented, and it can be made from T, JK flip-flop and D flip-flop.
इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि गेटेड एसआर लैचेस में इनेबल इनपुट ऐड हो रही है एसआर लैच के अंदर, और उस इनेबल इनपुट से क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि डी लैच या ट्रांसपेरेंट लैच कैसे काम करता है। डी लैच में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, डी लैच हम लोगों ने देखा था कि एस आर लैच से ही मिलके बना हुआ है, सिर्फ ये कि जो एस है वो डी से डायरेक्टली कनेक्ट है और आर जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी से कनेक्टेड है। ठीक है, लैचेस जो हैं वो सिग्नल के लेवल पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, वहां पे आप इनेबल को 1 करते हो या इनेबल को 0 करते हो, वो उस पे काम करती हैं। जब तक इनेबल 1 है आपके पास फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब इनेबल 0 होगा तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये सिग्नल के लेवल पे काम कर रहा है। जबकि इससे काफी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो रही थी सिंक्रोनाइजेशन की। तो वो उन सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर आए। फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसे मेमोरी एलिमेंट्स थे जो सिग्नल लेवल के बजाय क्लॉक की ट्रिगरिंग पे काम कर रहे थे। ठीक है, क्लॉक ट्रांजिशन पे काम कर रहे थे। जब भी क्लॉक 0 से 1 होती है तो आपके पास आउटपुट की स्टेट इनपुट के मुताबिक आ जाती है। ठीक है, जब तक नेक्स्ट ट्रांजिशन अकर नहीं होती तब तक वो उसी स्टेट में रहता है। ठीक है, वर्किंग स्टेट में रहता है। इसी तरह हमने देखा था कि दो तरह की ट्रांजिशंस है, एक 0 से 1 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव एज है, और एक 1 से 0 है जो नेगेटिव एज है। तो जो फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करता है उसको हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कहते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज पे ट्रिगर करता है उसको हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। हमने फिर देखा था कि फ्लिप फ्लॉप की दो जो टाइप्स हैं, एसआर और डी फ्लिप फ्लॉप, जिनका फंक्शन टेबल तकरीबन गेटेड एसआर लैच और डी लैच के साथ मिलता जुलता था। सिर्फ ये कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें एनेबल की जगह हम इनपुट पे क्लॉक दे रहे थे। आज एक और फ्लिप फ्लॉप हम देखेंगे, ठीक है, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है, और मोस्टली इंडस्ट्री में या मोस्टली एप्लीकेशन में जे के फ्लिप फ्लॉप ही यूज होता है। जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर आप चेंज देखेंगे तो एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही मिलता जुलता है। ये एज ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, क्लॉक पे एज ट्रिगर्ड होता है। इसका ये जो क्यू बार है ये के से कनेक्टेड है, और इसका क्यू जो है वो के से कनेक्टेड है, और क्यू बार जो है वो जे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो नैंड गेट 3 है ये क्यू बार से कनेक्टेड है, और नैंड गेट 4 जो है वो क्यू से कनेक्टेड है। ये इसमें चेंज है जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में नहीं था। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कुछ नहीं था। एसआर फ्लिप फ्लॉप जस्ट आपके साथ 1 और 2 पे ही कनेक्ट हो रहे थे। तो अब इसका फायदा यह है कि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनवैलिड स्टेट नहीं होती है। ठीक है, जो हमने स्टेट पढ़ी थी कि हम जब एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर दोनों सेट और रीसेट को 1-1 करते थे तो आउटपुट के ऊपर क्यू और क्यू बार दोनों 1-1 हो रहे थे, जो कि इनवैलिड है, क्योंकि क्यू और क्यू बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इनको एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम स्टेट में आ जाते हैं तो वो इनवैलिड स्टेट बन जाएगी, और वो इनवैलिड स्टेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम कभी भी ड्यूरिंग ऑपरेशन उस इनवैलिड स्टेट को अप्रोच ना करें। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में ये डिस्क्रिपेंसी दूर हुई है। जे के फ्लिप फ्लॉप में कोई इनवैलिड स्टेट नहीं है। जब जे और के दोनों 1 होंगे तो आउटपुट जो भी होगी वो टॉगल हो जाएगी। मींस क्यू के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्यू बार को असाइन हो जाएगी, और क्यू बार के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्यू को असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यू इज इक्वल टू 0 है और क्यू बार इज इक्वल टू 1 है, जे और के जब 1 होंगे तो क्यू 1 हो जाएगा और क्यू बार 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब जे के 1 है और क्यू बार के ऊपर इससे पहले 0 था 1 था तो वो आपस में टॉगल कर जाएंगे। तो आउटपुट के ऊपर क्यू बार और क्यू के बीच में टॉगलिंग हो जाती है जब भी जे और के 1 आता है। इसके अलावा जब भी
जे और के 0 0 होंगे तो आपके पास वही स्टेट मेंटेन होगी जो प्रीवियस है, ठीक है, स्टेट को होल्ड कर देगा जब जे और के दोनों 0 0 होंगे, ठीक है। 0 0 के ऊपर आपके पास स्टेट मेंटेन रहती है। 0 1 के ऊपर आपके पास q इज इक्वल टू 0 है और q बार इज इक्वल टू 1 है। 1 0 के ऊपर आपके पास q 1 है और q बार 0 है, ठीक है। जब j 1 है तो q 1 है, j 0 है तो q 0 है। सिंपल अगर इस चीज को समझना चाहें तो। और जब 1 1 होगा, ठीक है, 1 1 होगा तो q के ऊपर q बार आ जाएगा और q बार के ऊपर q आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट टॉगल हो जाएगी 1 1 के ऊपर। तो ये इसका ऑपरेशन है जे के एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप का। इसकी डिटेल इस स्लाइड में लिखी हुई है, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये वही बातें जो हम कर चुके हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा फ्लिप फ्लॉप का। अब यहां पे हमारे पास फंक्शन टेबल है जे के पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का, ठीक है। जब क्लॉक 0 है या क्लॉक 1 है, लेवल्स के ऊपर जे है या के है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यू के ऊपर वही स्टेट मेंटेन रहेगी जो उससे पहले थी। जब एक एज अक्कर हुआ है और पॉजिटिव एज अक्कर हुआ है तो इनपुट्स रीड हुई हैं, इनपुट्स के हिसाब से आउटपुट सेट हुई है। 0 0 के ऊपर आउटपुट हम लोग देख चुके हैं कि स्टेट होल्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट एज अकर हुआ और इनपुट 0 1 हुई है तो आपके पास आउटपुट पे 0 आ रहा है। इसी तरह जब अगला एज अकर हुआ 1 0 के ऊपर आउटपुट 1 हो गया है और उससे अगले एज के ऊपर जब 1 1 आया है तो आपके पास क्यू के ऊपर क्यू बार आ गया है, यानी आपके पास स्टेट टॉगल हो गई है। सिमिलर ऑपरेशन नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में भी परफॉर्म होता है, मगर अब यहां पे पॉजिटिव एज की जगह नेगेटिव एज के ऊपर आपके पास फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट काम कर रही है, आ रही है। इसी तरह ये हमारे पास लॉजिक सिंबल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर आप देखिए ये क्लॉक के आगे ये जो सर्कल है ये बता देता है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई सर्कल नहीं होगा, जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है वो डायरेक्टली इस तरह का सिंबल आपके पास आ रहा होगा। इसके अलावा भी एक फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको नॉर्मली टॉगल फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। अब जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है इस पे जब 0 होगा तो वही स्टेट होल्ड होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, और जब 1 होगा तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्यू बार हो जाएगा, ठीक है, क्यू बार हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट या टॉगल वाला जो काम है ये हम लोगों ने देखा है ये कैसे जे के फ्लिप फ्लॉप में हो रहा था, ठीक है। इसलिए टी फ्लिप फ्लॉप को हम एक जे के फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। अगर हम जे और के दोनों एक ही इनपुट से कनेक्ट कर दें तो आपके पास ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। और अगर टी फ्लिप फ्लॉप को हमने डी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप पे आप जो वैल्यू दोगे वही होल्ड करेगा, तो डी फ्लिप फ्लॉप से अगर आपने टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपके पास टी XOR ऑफ क्यू, ठीक है, टी XOR क्यू, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो आपका डी फ्लिप फ्लॉप भी टी फ्लिप फ्लॉप पे ही काम करेगा। अब ये जो XOR है इसकी एक इनपुट टी है और एक क्यू है। जब आप टी पे 0 देंगे, ठीक है, तो क्यू पे 0 है, ठीक है, डी पे आपके पास 0 0 के ऊपर XOR 0 ही होगा, ठीक है। ये 0 1 या 1 0 के ऊपर 1 होता है, बाकी ये 0 रहे। 0 आया डी फ्लिप फ्लॉप पे तो आपके पास वही 0 ही यहां पे आएगा, ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं होगी, क्यू जो इनिशियल स्टेट में है वही स्टेट आएगी। अब क्यू अगर 1 है, ठीक है, क्यू 1 है और 0 1 हुआ है तो 0 1 यहाँ 1 आएगा, 1 अगेन यहाँ पे 1 ही आएगा, यानी वही स्टेट रहेगी जो स्टेट है। अब क्यू 0 है, टी 1 है, ठीक है, टी 1 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू बाहर आ जाना चाहिए।
Q अगर 1 था तो Q 0 हो जाएगा, Q 0 था तो Q 1 हो जाना चाहिए। तो ये इसी तरह ही काम करता है। इसके बाद अगर आप इसका ग्राफिक सिंबल देखें तो ये आपको ग्राफिक सिंबल नजर आ रहा है। क्लॉक इनपुट है, एक Q आउटपुट है, एक आउटपुट Q बार है और एक इनपुट ये इसकी T है। तो ये T फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल आप देख रहे हैं। अब हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो सिंक्रोनस डिवाइसेस हैं, मगर इनके साथ इनके ऑपरेशन के लिए हम लोगों को दो ऐसी इनपुट्स कनेक्ट करनी पड़ती हैं जो एसिंक्रोनसली परफॉर्म करती हैं, ठीक है, जो क्लॉक के साथ सिंक नहीं होती हैं। ये आपके लेवल पे काम कर रही होती हैं, ये आपके हिसाब से काम कर रही होती हैं, ठीक है। द SR, JK and D inputs are known as synchronous inputs because the output changes when appropriate input values are applied at the input and the clock signal is applied at the clock input। जो हमारे पास सिंक्रोनस इनपुट थी SR, JK, D, ये सिंक्रोनस इनपुट थी। इसमें आपने देखा था इनको सिंक्रोनस इनपुट हम कह रहे थे कि ये जब क्लॉक का सिग्नल आता था तो आपके पास आउटपुट वैल्यू चेंज होती थी इन इनपुट वैल्यू के ऊपर। अब बाज दफा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक सर्किट चल रहा है और आप कहते हो कि आप उसको रीसेट कर दो इनिशियल स्टेट के ऊपर, या उसकी इनपुट पे जो आउटपुट है वो सारी क्लियर कर दो। तो इन दो कामों के लिए हम लोगों ने ये एसिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर की इनपुट हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर अप्लाई करते हैं, या फ्लिप फ्लॉप के अंदर अवेलेबल होती है हमारे पास ये प्रीसेट और क्लियर की इनपुट। ये दोनों इनपुट्स जो हैं आपके पास एसिंक्रोनसली काम करती हैं, ठीक है। इन इनपुट्स को चेंज करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट क्लॉक सिग्नल चाहिए होता है। आप उस क्लॉक सिग्नल पे या सिंक्रोनस इनपुट वाले क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। आप इसको क्लॉक सिग्नल से भी कनेक्ट कर सकते हो, पल्स से भी कर सकते हो, या एक सिग्नल लेवल से भी कर सकते हो। अगर सिग्नल लेवल को भी आप चेंज करते हैं तो अगेन वो एक क्लॉक का ही सिग्नल बनेगा, ठीक है। ये अब इसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। क्लियर इनपुट सेट टू 0 सेट्स Q बार इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 0। जब भी क्लियर की इनपुट आप आएगी सेट 0 करोगे तो आपके पास Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। द सिंक्रोनस इनपुट ओवरराइड द सिंक्रोनस inputs thus to operate the flip flop in synchronous mode the asynchronous inputs have to be disabled। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप को एसिंक्रोनस से मोड में नहीं चलाना, सिंक्रोनस मोड में चलाना है, तो आपको ये एसिंक्रोनस इनपुट्स को डिसेबल करना पड़ेगा। टू प्रीसेट द फ्लिप फ्लॉप टू Q is equal to 1 and Q is equal to 0, प्री इनपुट इज सेट टू 0 बिकॉज प्री इनपुट जो है वो आपके पास नेगेटिव लॉजिक के ऊपर काम कर रही है। प्री के ऊपर आपके पास ये बार नजर आ रहा है, ठीक है, ये बार। ये इसका मतलब ये है कि जब प्री इनपुट 0 होगा तो आपके पास Q is equal to 1 और Q is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। इनपुट्स आप जो मर्जी आ रही हैं उस पे नहीं होगा। जब आपने रीसेट कर दिया है तो आपके पास Q is equal to 1, Q is equal to 0 वो इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और जब जो क्लियर इनपुट है वो भी नेगेटिव लॉजिक 0 पे काम करेगी, ठीक है। ये आपके पास इसके ऊपर बार नजर आ रहा है। जब क्लियर इनपुट को आप 1 करोगे, ठीक है, एंड क्लियर इनपुट इज सेट टू 1 विच सेट्स Q बार आउटपुट टू 0, और Q आपके पास नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब क्लियर इनपुट भी सेट टू 0 होगी तो आपके पास इनपुट पे जो Q पे जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, Q बार 1 होगा। Q बार 1 होगा तो इसका मतलब है Q आपके पास 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स जो JK फ्लिप फ्लॉप में यूज करते हैं, ठीक है, अगर वो फ्लिप फ्लॉप आपके पास जो इनपुट्स हैं वो डिसेबल्ड है, वो 1 है, तो आपके पास क्लॉक्ड ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा जो JK ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अदरवाइज 0 पे ये काम कर रही हैं क्योंकि नेगेटिव लॉजिक पे काम कर रही हैं। सेटिंग प्री एंड क्लियर टू लॉजिक 0, इकट्ठा आप प्री और क्लियर को 0 दोनों एक साथ 0 नहीं कर सकते हैं। उस पर अगर आप 0 करेंगे तो आपके पास आउटपुट इनवैलिड स्टेट पे चली जाएगी। आप उसको उस आउटपुट को आप नॉर्मल आउटपुट नहीं कह सकते हैं, इनवैलिड आउटपुट आप उसको कहेंगे जब आप दोनों
प्री और क्लियर को दोनों को इकट्ठे लॉजिक 0 पे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये हमारे पास प्रीसेट और क्लियर की इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, दोनों लॉजिक 0 पे काम कर रही है, नैंड गेट पे हैं। जब भी ये 0 होंगी, ठीक है, प्री अगर 1 है, ठीक है, 1 है तो ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्री जैसे ही 0 होगी तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी वो क्यू 0 हो जाएगी, चाहे क्यू पे 1 है या 0 है। क्यू 0 होगा तो क्यू बार आपके पास 1 हो जाएगा। इसी तरह आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आप आउटपुट को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे क्यू के ऊपर 1 आ रहा है और क्यू बार के ऊपर 0 आ रहा है, तो आप क्लियर को जैसे ही 0 करेंगे, ठीक है, क्लियर इनपुट को जैसे ही 0 करेंगे तो क्यू के ऊपर 1 आ जाएगा और क्यू बार आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्यू की वैल्यूज क्लियर होके बाय डिफॉल्ट 1 पे सेट हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो है एसिंक्रोनस इनपुट्स काम करती हैं। एसिंक्रोनस इनपुट्स जब लॉजिक सिंबल के साथ अगर अवेलेबल होंगी तो वो इस तरह की होंगी। आप देख रहे हैं ये जो सर्कल बना हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉजिक 0 के ऊपर एनेबल होंगी और लॉजिक 1 के ऊपर जो आपका क्लॉक ऑपरेशन है वही चलता रहेगा। यही चीज हम लोग इस फंक्शन टेबल में देख रहे हैं, प्री और क्लियर और आउटपुट के ऊपर। जब ये दोनों 0-0 होंगी जो अलाउड नहीं है तो आपके पास आउटपुट इनवैलिड होगी। ये कभी भी दोनों इकट्ठे आप 0 नहीं करोगे, आप 1 एट अ टाइम यूज करोगे जो एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं। जब प्री आपके पास 0 है, रीसेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्यू 1 हो जाएगा। और जब क्लियर आपके पास क्लियर आपके पास 0 है तो आपके पास क्यू 0 हो जाएगा और क्यू बार आपके पास 1 हो जाएगा। क्लियर जो है वो आउटपुट को 0 पे सेट कर देता है और प्री सेट जो है वो आउटपुट को क्यू 1 पे सेट कर देता है। और जब दोनों इनपुट्स आपके पास 1-1 होंगी तो आप इसको क्लॉक ऑपरेशन से क्लॉक ऑपरेशन जो नॉर्मल जो ऑपरेशन होता है वही परफॉर्म होता रहेगा। अच्छा, ये इसकी आपके पास रीसेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके पास ये लॉजिक डायग्राम आ रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, डी फ्लिप फ्लॉप है। एसिंक्रोनस जो आपके पास रीसेट है, इसके क्योंकि हम आपके पास एक ही इनपुट होती है डी में, आप इसको रीसेट जैसे ही रीसेट करोगे क्यू के ऊपर 0 आ जाएगा और क्यू बार आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रीसेट आपके पास 0 हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है। जब ये 1 होगा, रीसेट 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कर लो जो प्रीवियस मेंटेन्ड है वही स्टेट होगी। ठीक है, जो क्लॉक ऑपरेशन है वही चल रहा होगा। ये क्लॉक ऑपरेशन के लिए जैसे ही रीसेट 0 होगा क्यू 0 हो गया। ठीक है, जब डी के ऊपर 0 है तो 0 है, डी के ऊपर 1 है तो 1 है। तो ये आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप विथ एसिंक्रोनस रीसेट की लॉजिक डायग्राम है, फंक्शन टेबल है और साथ ही साथ इसका ग्राफिक सिंबल आ रहा है। अब फ्लिप फ्लॉप की एक और कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है ये अब ऑब्सोलीट हो गई है। जब जे के फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल नहीं थे तो हम ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को देखते थे। ठीक है, एज ट्रिगर्ड जब जे के फ्लिप फ्लॉप आए तो ये मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई थी। जस्ट आपको नॉलेज के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है। अब मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, ये दो स्टेजेस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और दोनों सिग्नल लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये एज के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। मास्टर और स्लेव दो कंपोनेंट्स में काम करते हैं। अगर हम इसको ज्यादा बेहतर इसकी लॉजिक ये डायग्राम से समझ सकते हैं। अब आप देख रहे हो क्लॉक का जो नेगेटिव 0 है वो यहाँ पे कनेक्ट है, क्लॉक का जो 1 है, ठीक है, वो इधर इनके साथ कनेक्टेड है। ये क्लॉक के 1 पे कनेक्टेड है और ये क्लॉक के 0 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास एक पल्स आ रही है, ठीक है, ये क्लॉक आ रही है। जब क्लॉक 0 से 1 होगी, ठीक है, 0
से 1 होगी, एज ट्रिगर्ड पे बात नहीं हो रही, लेवल पे बात कर रहा हूं, जब 0 से 1 होगा तो मेरे पास ये जो फर्स्ट हाफ है जिसको आप मास्टर कहते हो वो फंक्शनल होगा, इनपुट के हिसाब से इसकी आउटपुट सेट हो जाएगी, ठीक है, क्यू बार इसकी आउटपुट सेट हो जाएगी। और जब ये 1 से 0 होगा, ठीक है, लेवल जब 1 से 0 होगा तो जो आपके पास यहां ये वाला आउटपुट आपके पास होल्ड रहेगी, ठीक है, और ये वाला जो आपके पास स्लेव वाला जो पोर्शन है वो इस इनपुट को रीड करेगा जो प्रीवियस की आउटपुट थी और उस हिसाब से आपके पास क्यू और क्यू बार के ऊपर वैल्यूज देगा, ठीक है। ये एज ट्रिगर्ड से मिलता जुलता ऑपरेशन है मगर ये एज ट्रिगर्ड नहीं है, ये आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव लेवल पे और एक नेगेटिव लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। और जब तक ये 1 रहेगा तब तक ये वाला काम करता रहेगा और जैसे ये 0 होगा तो जब तक ये 0 रहेगी, क्लॉक 0 रहेगी तो ये वाला काम करता रहेगा। ये नहीं है कि जब ये एज आया तो ये रिजल्ट आपको दे रहा है और जब तक नेक्स्ट एज नहीं आता तो वो आपके पास एज ट्रिगर्ड होते हैं, ये लेवल ट्रिगर्ड है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास लेवल ट्रिगर्ड होती है, एज ट्रिगर्ड नहीं होती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑल्दो ऑब्सोलीट हो गई है, अब किसी एप्लीकेशन में ये यूज नहीं होते हैं। जब से जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास आए हैं तो ये हम लोग मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने यूज करना छोड़ दिया। बट क्योंकि नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। पिछले लेक्चर में ये मास्टर स्लेव और फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो मास्टर स्लेव की हम लोगों ने बात कर ली है, अब ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक में हमने देखा था कि हर आईसी के कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके भी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर प्रोपेगेशन डिले है, सेटअप टाइम है, होल्ड टाइम है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, पल्स विड्थ है और पावर डेसिपेशन है। इसमें सबसे पहले आ जाए प्रोपेगेशन डिले के ऊपर। द प्रोपेगेशन डिले टाइम इज द इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन इनपुट इज अप्लाइड एंड द आउटपुट चेंजेस। प्रोपेगेशन ये कि आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर 3 या 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक भी है। जब आप इनपुट के ऊपर कोई इनपुट चेंज करते हो, ठीक है, एक क्लॉक साइकिल अकर होता है तो आपके पास एकदम से आउटपुट नहीं आती है, कुछ देर के बाद आउटपुट आती है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप सीरियल में कनेक्टेड है और एक फ्लिप फ्लॉप की 5 मिली सेकेंड डिले है, दूसरे के भी 5 मिली सेकेंड डिले है, तो 10 मिली सेकेंड के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस डिले को हम प्रोपेगेशन डिले कहते हैं, ठीक है। ये 50% ट्रांजिशन मार्क से मेजर होती है, मींस कि जब आपने इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, और जब आपके पास आउटपुट चेंज हुई, इनपुट 0 से 1 हम जो एकदम से 0 से 1 करते हैं, ऑल्दो ये एकदम नहीं होती है, इसको 0 से 1 होने में टाइम थोड़ा सा कुछ लम्हों का टाइम लगता है, मगर जब आप नैनो सेकेंड्स के हिसाब में आएंगे तो आपको वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये 0 से 1 होने में एकदम से 0 से 5 वोल्ट नहीं होता, 0 से 1 2 3 4 5 फिर चलता है। तो ये 50% मार्क का मतलब ये है कि जब ये 2.5 को क्रॉस कर रहा हो और आउटपुट का लेवल भी 2.5 से ऊपर जा रहा हो तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसको आप प्रोपेगेशन डिले कह देते हैं। इसी तरह सेटअप टाइम और होल्ड टाइम, ये भी 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप के। अब सेटअप टाइम ये है, ठीक है, when a clock transition occurs at the clock input of a flip flop, the output of flip flop is set to a new state based on the input। जब भी क्लॉक की ट्रांजिशन अकर होती है, जब भी क्लॉक आता है तो आपकी जो इनपुट्स हैं वो रीड होती हैं, उन इनपुट्स के हिसाब से आपकी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट सेट होती है। For the flip flop to change its output to a new state at the clock transition, the input should be stable। ठीक है, इनपुट शुड बी स्टेबल का मतलब ये है कि जब आपके पास ये क्लॉक साइकिल आता है, ठीक है, उससे पहले पहले आपके पास इनपुट के लेवल स्टेबल हो जाने चाहिए। अब कितनी देर पहले स्टेबल होने चाहिए उसको हम सेटअप टाइम कहते हैं। स्टेबल का मतलब ये है कि वो रीडेबल वोल्टेज लेवल के ऊपर आ जाने चाहिए। ये नहीं है कि एकदम क्लॉक ट्रांजिशन आई है और उसी वक्त आप चेंज करते हो
क्लॉक ट्रांजिशन अकर हो गई है मगर इनपुट्स जो हैं वो स्टेबल लेवल स्टेट में नहीं आए हैं, मींस के इनपुट अभी 2.5 से नीचे नीचे ही रह रहा है, वो 3 वोल्ट या इससे नीचे नीचे नहीं आया, इसको आप सेटअप टाइम कहते हो। तो ये भी गिवन होता है डेटा शीट में, ये हमें पता होता है कि आपके पास इससे पहले आपने कितनी देर पहले क्लॉक ट्रांजिशन से कितनी देर पहले आपने आपकी इनपुट्स को स्टेबल होना चाहिए। ओके, तो the minimum time required for the input logic level to remain stable before the clock transition occur is known as setup time. Hold time अगर आप देखें, the minimum time for which input signal has to be maintained at the input is the hold time. फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट जो है वो आपके पास इनपुट पे आ रही होती है, इसमें जो है आउटपुट सिग्नल हैज टू बी मेंटेन्ड एट इनपुट इज द होल टाइम। ये मेरे ख्याल टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें। द इनपुट सिग्नल मेंटेन एट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट हैज टू बी मेंटेन फॉर अ मिनिमम टाइम आफ्टर द क्लॉक ट्रांजिशन अकर फॉर फ्लिप फ्लॉप टू रिलायबली क्लॉक इन द इनपुट सिग्नल। ठीक है, जब आपके पास क्लॉक ट्रांजिशन आती है तो आपके पास इनपुट स्टेबल होनी चाहिए ताकि आपके पास आउटपुट के ऊपर टाइम आना चाहिए। इसी तरह इनपुट में आप देख रहे हैं कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट है वो वापस इनपुट के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, अब एक क्लॉक ट्रांजिशन आई है, उस क्लॉक ट्रांजिशन आई है, उसने इनपुट्स के रीड किया है, उसके हिसाब से उसने नई आउटपुट जनरेट की है, मगर जो प्रीवियस आउटपुट थी वो भी इनपुट के ऊपर ही आ रही है। अब वो कितनी देर तक वो होल्ड होनी चाहिए वैल्यू ताकि आपके पास प्रॉपर नेक्स्ट स्टेट इवैल्यूएट की जा सके, उसको आप होल्ड टाइम का नाम देते हैं। तो इसमें आप देखें कि होल्ड टाइम, अब इनपुट्स, एक तो जो आउटपुट आ रही है वो इनपुट हो रही है, दूसरा जो इनपुट्स आप जो अप्लाई कर रहे हो, जो ए बी इनपुट आप किसी फॉर एग्जांपल जे के फ्लिप फ्लॉप पे आप जे और के की इनपुट दे रहे हो, एक ट्रांजिशन अकर हो रही है। ठीक है, उस ट्रांजिशन अकर होने के बाद जो इनपुट वैल्यूज हैं उनको कुछ देर तक आपको स्टेबल उसी स्टेट में रखना है ताकि उन स्टेट्स के हिसाब से आपके पास आउटपुट आ सके, और जो प्रीवियस स्टेट है वो भी इनपुट पे आ रही है। ठीक है, अब जो प्रीवियस स्टेट्स है उनको आपको कुछ देर के लिए फ्लिप फ्लॉप के ऊपर होल्ड रखना है ताकि आउटपुट जनरेट हो। अगर उस आउटपुट के जनरेट होने से पहले ही आप इनपुट्स को चेंज कर देते हो तो आपकी जो आउटपुट है वो इनवैलिड होगी, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकोगे कि वो किस स्टेट में होगा। तो इस चीज को आप होल्ड टाइम कहते हो। ठीक है, कि एक ट्रांजिशन जो सेटअप टाइम है वो ट्रांजिशन अकर होने से पहले कितनी देर पहले आपकी इनपुट्स जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, वो सेटअप टाइम है। और होल्ड टाइम ये है कि क्लॉक ट्रांजिशन होने के बाद कितनी देर तक आपको इनपुट्स को उसी स्टेट में रखना है जिस स्टेट में वो स्टेबल स्टेट में है, जो उससे ट्रांजिशन अकर होने से पहले स्टेबल स्टेट में आ गई थी, आपको उन्हीं स्टेट में रखना है ताकि उन ट्रांजिशन अकर होगी उसकी कुछ देर बाद ही आउटपुट जनरेट होगी, एकदम से जनरेट नहीं होगी। जो उस टाइम में अगर आप एकदम से इनपुट्स को डिस्टर्ब करोगे तो आपकी आउटपुट इनवैलिड होगी। ठीक है, तो आपको उस देर के लिए आपको जो वैल्यूज है उनको, इनपुट की वैल्यूज को आपको होल्ड रखना पड़ता है, तो इस चीज को आप होल्ड टाइम कहते हैं। इसी तरह मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी एक और पैरामीटर है। ठीक है, हर फ्लिप फ्लॉप की एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब अगर मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है डेटा शीट में, अगर आप उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी क्लॉक अगर उससे ज्यादा है तो आपके इनपुट स्टेट्स आउटपुट आने से पहले नेक्स्ट ट्रांजिशन आ जाएगी। ठीक है, अभी पिछली स्टेट स्टेबल हुई नहीं होगी कि आपके पास नेक्स्ट ट्रांजिशन आ जाएगी, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसका बिहेवियर इनवैलिड हो जाएगा। तो आपके पास जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो ये बता रही होती है कि ये वो हाईएस्ट रेट है जिसके ऊपर फ्लिप फ्लॉप
इजीली रिलायबली ऑपरेट कर सकता है। अगर इससे आप ज्यादा की फ्रीक्वेंसी क्लॉक के ऊपर देंगे तो आपके पास जो इन फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो स्टेबल नहीं रहेगी, वो रिलायबल नहीं होगी। ठीक है, जो क्लॉक ट्रांजिशन, अब ये फ्रीक्वेंसी है क्या कि कितनी जल्दी आपके पास ये क्लॉक ट्रांजिशन अकर हो रही है, ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, इसको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पल्स विड्थ भी एक पैरामीटर है जो आपके डेटा शीट के अंदर स्पेसिफाई होता है। ठीक है, अब पल्स विड्थ ये है कि जो आपके पास क्लॉक, अगर मैं पेन यूज करूं, यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम पल्स विड्थ कहते हैं। एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन अकर होने के दरमियान के टाइम को आप पल्स विड्थ कहते हो। ठीक है, ये पल्स विड्थ भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, और ये पल्स विड्थ आपको गिवन होती है डेटा टेबल में कि मिनिमम टाइम और मिनिमम लोड टाइम आपके पास क्लॉक का क्या होना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम के लिए ये हाई होगी और कितने टाइम के लिए ये लो होगी। ठीक है, ये पल्स विड्थ जो आपको विड्थ आ रही होती है पल्स की, ये आपको गिवन होती है। सॉरी, ये ड्यूटी साइकिल होता है, एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन के दरमियान का जो टाइम होता है उसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। और पल्स विड्थ ये है जितनी देर के लिए आपके पास एक क्लॉक 0 या एक क्लॉक 1 रहेगी, जिस टाइम के लिए उसको आप पल्स विड्थ कहते हैं। तो ये पल्स विड्थ के पैरामीटर भी आपको गिवन होते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये ट्रांजिशन ही ड्यूटी साइकिल के हिसाब से सेट होते हैं, और ड्यूटी साइकिल आपके पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट होता है। तो ये पल्स विड्थ भी आपको गिवन होती है कि मिनिमम जो हाई टाइम और मिनिमम लो टाइम रिक्वायर्ड है इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने के लिए, वो आपको पल्स विड्थ के स्पेक्स के अंदर, डेटा शीट के अंदर मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा पावर डेसिपेशन भी होती है। हर जितने भी हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी हर सर्किट एक पावर कंज्यूम कर रहा होता है, तो हर फ्लिप फ्लॉप भी अंदर का सर्किट्स लगे होते हैं, वही गेट्स ही लगे हुए हैं, उन गेट्स वो पावर डेसिपेट कर रहे हैं। ये पावर डेसिपेशन आपको ये बताता है कि मिनिमम इतने मिलीवॉट की सप्लाई आपको चाहिए इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, चाहे वो सीरीज में लगे हुए हैं चाहे वो पैरेलल लगे हुए हैं, वो कॉमन सप्लाई शेयर कर रहे हैं, अगर एक फ्लिप फ्लॉप की 25 मिलीवॉट पावर डेसिपेशन है तो वो 10 फ्लिप फ्लॉप की तकरीबन 250 मिलीवॉट पावर डेसिपेशन होगी। अगर 250 मिलीवॉट से कम की पावर सप्लाई में फ्लिप फ्लॉप को दूंगा तो मेरा फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, मेरा वो सर्किट काम नहीं करेगा। तो पावर डेसिपेशन भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने के लिए। पावर आप फाइंड कैसे करते हो? वीसीसी पे जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, वोल्टेज, वो मल्टीप्लाई बाय आईसीसी, जो करंट ड्रॉ करेगा फ्लिप फ्लॉप सप्लाई से वो आईसीसी होगा। जो वीसीसी पिन के ऊपर जो करंट ड्रॉ होगा पावर सप्लाई से उसको आईसीसी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पावर डेसिपेशन का फिगर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स थे हमने आज वो देखे। हमने मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन देखी है, और हमने जे के फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा है, टी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा है, और देखा है, हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास सिंक्रोनस इनपुट्स के अलावा एसिंक्रोनस इनपुट्स भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर होती हैं, जिसको आप प्री या रीसेट और क्लियर के नाम से आपके पास अवेलेबल होती हैं। जब प्रीसेट या रीसेट को आप एनेबल करोगे तो आपके पास आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, जब आप क्लियर को एनेबल करोगे तो आपके पास आउटपुट 0 हो जाएगी। इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप में भी हमने देखा है। ठीक है, जब ये रीसेट आपके पास 1 होगा, ठीक है, रीसेट आपके पास ये 1 होगा तो आपके पास आउटपुट आपके पास 0 के ऊपर ये क्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जब रीसेट 1 होगा, ठीक है, इस केस में यहाँ पे तो ये ग्राफिक सिंबल में ये नेगेटिव रीसेट को शो कर रहा है। रीसेट 1 होगा तो आपके पास क्यू पे आपके पास 1 होगा और क्यू बार आपके पास 0 होगी। ठीक है,
ये 1 के, ये रीसेट जो है ना, ये यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये 1 पे, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक है। जब भी रीसेट 1 होगा, क्लॉक और डी को जो मर्जी हो, आपके पास क्यू 0 होगा, और सॉरी क्यू 0 होगा और क्यू बार 1 होगा, रीसेट हो जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। और जब ये रीसेट 0 होगा तो आपके पास नॉर्मल क्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग फिर हम देखेंगे कि हम कैसे सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह उसे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।